वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। किसी ने कहा है कि आपका जो हाथ है ना, मेरी आँखों के लिए ख़तरनाक है। आपको लगता है? आपका हाथ मेरी नाक के लिए खतरनाक हो चुका है। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, गुजरात अहमदाबाद से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है मनेकचौक, अहमदाबाद, गुजरात, नाइट स्ट्रीट फूड मार्केट। से स्टार्ट करते हैं। अहमदाबाद। Wow, what a shock. What's up guys, this is David Hoffman from David's Been Here. I'm here in AHMEDABAD, Gujarat, India, and I'm currently on my way to eat some late night veg food at Manekchowk. Manekchowk. It's one of the most famous places in the city to eat, and I'm super excited. I'm currently on a motorcycle and we're going through the center, the old town of AHMEDABAD, and everybody here is just like watching me, and we can't get through right now. We're like surrounded by tuk-tuks, scooters, motorcycles. It's pretty insane. I'm here with my friend Had from You Eat Me Insane. Yeah. And we're going to eat. Are you guys ready? Let's dive into another adventure. Yeah! So we are at Manekchowk right now, and you can see the food joints around us. So basically this place is a jewelry market or a normal market during the daytime, but at night it converts into a food joint. So let's start. Guys, we found Indian street food heaven in Ahmedabad. So many different places to choose from, and we're starting off with this sandwich. What is the sandwich? This is Gugra sandwich. Gugra sandwich. So basically Gugra is a Gujarati snack. Okay. So we have stuffed the Gugra into the sandwich. And what's a Gugra? It's a potato. This is a potato. Okay, so potatoes, there's onions, Yes. there's like green All peppers, vegetables, there's and butter like yes, crazy. Yes, and that's a Gugra. So here we have it. I'm gonna take it out. Oh wow! So there I see a lot of breading. There's the potato, onions, and then I dip into the mint chutney. Yeah. It's already some mint chutney. Oh my god! Butter. No, it's incredible. And right here we have some ketchup. I thought it was tamarind chutney, but it's ketchup. Oh yeah. Ketchup for the win. So buttery, crunchy. It really feels like it was a big piece of melted cheese just bursted out of there. We added a lot of cheese to it. Okay, so here we have a chocolate sandwich. This is crazy. It's chocolate with cheese. Yes. So it's just like a regular chocolate cheese sandwich, but we have chocolate chips and lots of chocolate sauce too. It's funny, you said it's a regular chocolate cheese sandwich. Oh, I've sorry. never had a chocolate and cheese sandwich in my life. Nothing regular about that. Cheese sandwich. Okay? And basically, the guys are right here that are making all the sandwiches. They're making a variety of sandwiches, right? So we just had a sandwich from them, then we're having another one. This one's a sweet sandwich, and the way it works here is in the middle, there's like 100 tables. Everybody sits down here, and waiters come around and take your order. So you don't even have to stand in front of the vendor. You can just sit down and just tell them what you want, right? And that's what we're gonna do. So we're gonna do that. We're also gonna film obviously the process of each one, but this is how we're gonna do it, and we're gonna start with this one. So there's bread, cheese, lots of cheese, butter, chocolate sauce, and chocolate chips. So I mean, All the best things in the world, right? what is this? Why? Why? If you love chocolate, you love cheese, it's for you. Yeah. Oh man. Good. Oh my god. What a combo. Yeah, it looks good, man. That was like such an overload of chocolate and cheese. So much butter, so much butter. Don't worry, chocolate all over my face, who cares? So there's a lot of Nutella in here. It's like 2 layers of Nutella. So it's bread. It's actually, okay, chocolate chip, cheese, butter, bread, Nutella, cheese, bread, cheese, Nutella. More butter, and then more bread. I might have to have another piece. Yes. No, I can't. You're the one eating. Go, 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 go.
We have some Pav bhaji pav bhaji with some chutney. with some chutney. Tamarind chutney or tomato No, chutney? it's garlic chutney. Garlic. Ooh, it's gonna make me have a bad breath tonight. Yes. Don't worry. I don't worry, I'm not kissing anyone tonight. My wife's in America. Let me. So I've had this before in Mumbai. I had it outside the station, the train station, Victoria Yes, Station. yes. And then over here to the right we We have have genie dosa. genie dosa. What is that? It's like a pizza? So, no, it's basically made with Szechuan sauce, Okay. lots of vegetables, and cheese. So it's basically a Chinese style dosa. Yes. Wow. So I'll start with the pav bhaji. So I'll get a bread, right? Yeah, I'm gonna go very light, guys. I've been eating it so much today. So get some of this, right? Get some of that. So on top, right? And then get some of that. Yes. So get some of this on top of that. Oh my god. Oh my god, it's intense garlic. Oh my god. I mean, this alone is fantastic. It's like a tomato base mixed with vegetables. Over here we have like a little salad with some cabbage, tomatoes. Pav bhaji is delicious. I'm gonna have it without the garlic because garlic's a little too much. Alright, my friend here convinced me to put a little bit of that garlic. Fantastic dish. You can eat it every time I'm in Mumbai. You can also eat it here in Ahmedabad. Yes. So let's have it. Oh, it's hot. Oh. So this dosa, first thing I can tell you is that because of the cheese, and because of all the ingredients inside, it's a little more moist. It's not as crispy as the dosas that you have in the south. And then we have three different things here. What do we have? This is the coconut and mint chutney. Oh, the best. This is sambar. Sambar. This is coconut chutney. This is coconut? Yes, only coconut. Oh, I'm going straight coconut. Oh wow. Oh wow. Strong and tangy. Super strong and tangy. It's delicious. It really tastes like a pizza dosa. Has a lot of different flavors inside. You see the cheese. Oh, you see the onions. Too hot. It's too hot. I'm gonna try with the. Was this mint? Yes. Some mint. Very nice. I mean, it really has like such a pizza taste to it. And we have to go with sambar. Sambar is like the thing you do in southern India. Dip it in, dunk it, let it absorb that sambar. Oh wow. Oh. Dude, this dosa is like up there in my top 3. Number 1 is some place I went to in Hyderabad. Number 2 is another place I went to in Hyderabad. And this is number 3. Alright, so we have another dosa, and this is a masala dosa? No, kotala dosa. Kotala dosa. And what does that mean? It's made up of cheese, paneer, and lots of vegetables. There's cheese in here? Yo. Oh yeah, you can Gravy. see it. Oh, you can see the cheese right here. Whoa. This is cheese right here. This is butter. That's butter. Great. Okay, I'm just gonna piece, dunk it in here, like that. Oh, look at that. Am I really gonna do this right now? Yeah, so it's paneer, there's some, I think there's some spinach. It looks very thick. It's like a super thick sauce. Oh my god. It's like the cheesiest thing I ever had in my life. Oh, but it's still good. Oh, I know I'm full, but damn. Dude, don't you think that'd be like the best nacho dip in the entire world? That is exactly what it is, man. It's like the best nacho thing. It's not spicy. It's very thick. Lots of cheese. There's obviously some vegetables in there. Wow. Let me get a little more. This is the grand finale. Ice cream sandwich. It's not like a regular ice cream sandwich. It is ice cream sandwich with cheese and bits of pineapple. So it's loaded with cheese, Oh my god. bread, pineapple, jam, you have ice cream, and again cheese. Okay, so I thought a regular, ice cream sandwich was fattening. This takes everything to another level. These people are just like insane.
You eat me insane. And it's melting really fast. Cheese Holy is complimentary. smokes. Holy smokes. Okay, here we go. Whoa. Whoa, dude. Oh, whoa. 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 What a combination. Ice cream with cheese. And pineapple. Oh, but it's so good. Ah. Oh, wow. Wow, wow. Wow, 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 wow. Wow. Too good? Insane. No, Insane. too much. Alright, so the end of the night here at Manekchowk, we're about to try some nitrogen biscuit. Yeah, man, why not? Of course we will. Oh. You gotta keep going. Oh yeah, yeah. The dragon. Dragon. Oh my gosh, that was some insane street food. I just loved it. What did you think? It was amazing. It was Yeah, amazing. if you're gonna be with us, it's gonna be insane. It is gonna be insane because you guys are, you eat me insane. Exactly. Of course, we had so much fun trying all the different foods. I mean, we ate so much cheese and butter, but it was all so good. It was also worth it. The atmosphere is fantastic over there. Apparently, it's like that every day of the week, Yes, isn't it? every day. Especially on the weekend. Yeah, weekends are bad. Weekends are beyond crazy. It's like, you know, you have to wait for hours and hours. Exactly. Wow. We had some insane, crazy stuff. And please follow and like their channel. David's channel. David's been here on Instagram and YouTube. And Sam and Audrey, right? Oh, yes, that's yes. right. Yeah, and please subscribe, like, and press the bell icon for our channel. You Eat Me Insane. Thank you. Thank you. Thank you. जी जनाब। अच्छा, ओह, मेरे ख्याल में शायद वो चीज़ और उसके उनके मुंह में ना टोटल एक वो लिक्विड चीज़ और चीज़ी चीज़। अच्छा, मुझे कोई लगा चैलेंज हो कि आपको चीज़ ही खाना है, या फिर ये कह सकते हैं कि मानकचौक यहाँ पे चीज़ी आइटम बहुत ज़्यादा मशहूर होंगे या होंगे। तो मुझे ये दो बातें लगी, और दूसरी बात ये, लेकिन हर फूड अपने आप में कमाल का लग रहा था देख कर, तो क्योंकि हमने टेस्ट नहीं करा, हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है, लेकिन देख कर ही काम चला रहे थे। तो देख कर मुझे मीठा हो या नमकीन हो, चाहे वो डोसा हो, चाहे वो सैंडविच हो, मुझे अपने आप में सारे यूनिक लग रहे कि एक बार तो बंदा अपनी लाइफ में ये चीज़ें ट्राई जरूर करे। अच्छा, चॉकलेट, चीज़, सैंडविच अपने आप में सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि यार किस तरह से होगा। अच्छा, मैंने बहुत सारी ना मेरे अंदर आदत है, मैं इंस्टा पे दो काम करती हूँ, या तो जो मैसेजेस आते हैं उनको रिप्लाई देती हूँ और उनके लिंक वगैरह जो हैं वो देखती हूँ, डाउनलोड करती हूँ, या फिर दूसरा काम ये करती हूँ बैठ के बस इंडियन फूड देखती रहती हूँ। सही। अच्छा, अक्सर मेरे जो सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स मैसेज कर रहे होते हैं तो मैं अक्सर कभी डोसा देख रही होती हूँ, कभी कुछ और देख रही होती हूँ, कभी बर्गर देख रही होती हूँ, कभी वड़ा पाव, कभी इडली, मतलब मुझे बहुत सारे खाने पता चल चुके हैं देख कर। तो मैंने हमेशा देखा है इनकी कोई स्पेशलिटी हो, या शायद ऐसा समझ लें कि इनका फूड इनकम्प्लीट है विदाउट चीज़। मतलब चीज़ का तड़का आखिर में लाजमी हो, वो जो गार्निश करते हैं ना, तो मैंने अक्सर सैंडविचेस में देखा है गार्निश के बगैर इनका ऑमलेट हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें लाजमी चीज़ डालेंगे। अच्छा, कभी गार्निश होगा तो कभी एक लेयर की तरह, एक पेपर की तरह भी रखते हैं, एक लेयर के तौर पे भी कभी रखते हैं, और कभी स्लाइस की बात, स्लाइस की तरह का होगा था, एक पेपर की तरह का रखते हैं, और कभी मतलब एक इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ है कि जितनी भी चीज़ें उन्होंने टेस्ट की, मुझे लगता है ये इनकी ज़िंदगी का पहला लुकमा था। ये चीज़ कभी इन्होंने खाई नहीं थी, बाकायदा फील कर रहे थे, बाकायदा देख रहे थे, बाकायदा है। एक तो ऐसा उन्होंने खाया, उनकी बिल्कुल आंखें ऊपर चढ़ गई, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था अभी बेहोश होने वाले। वो क्या था? मैंने देखा मीठा जब इन्होंने खाया ना, वो जो आइसक्रीम सैंडविच खाए थे तब भी मैंने देखा, और उससे पहले वो जो जिसके अंदर वो कह रहे थे चीज़ है, बटर है, न्यूटेला है, चोको चिप है, वो सैंडविच जब उन्होंने खाए थे, वो दोनों में मैंने देखा उन पे कोई सुरूर तारी हो गया हो, मतलब वो इंसान बिल्कुल अपने आंखों में नहीं होता, वो वाले एक्सप्रेशंस थे। आप तो ये कह रही थी, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच नहीं रही थी, तो आप तो ये कह रही थी कि ये नशे में आ गए। हाँ, मुझे ऐसा सीरियसली उनको
उनको देखकर, उनके एक्सप्रेशंस, उनका हाव भाव देखकर अगर मैं उनके बराबर में होती हूँ तो मैं समझती हूँ शायद इनको कोई नशा हो गया। अच्छा, जो भी व्लॉगर्स हैं, जो भी फॉरेन कंट्री, अच्छा एक और चीज़ है, फॉरेन कंट्री से काफ़ी लोग इंडिया में आते हैं, यहाँ के फूड, स्ट्रीट फूड व्लॉग बनाने वाले व्लॉगर्स काफ़ी और दूसरी तादाद में आते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बाकायदा यहाँ के लोग जो इनसे कांटेक्ट में होते हैं, मुझे लगता है यहाँ की ये जो लड़की थी, ये मतलब इन्हें जानती थी, इनकी मतलब फ़ैन थी, इनकी वीडियोस देखती होंगी, इन्होंने दावत दी होगी, जो भी है। तो यहाँ पर क्योंकि जब वो आए थे किसी बाइक वाले के साथ, तो यहाँ पर वो इन्हें पहले से मिली, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने तय किया कि मैं आपको यहाँ पे मिलूंगी। अच्छा, पता है होता क्या है, अक्सर मैंने ये चीज़ नोटिस की है, मार्केट की जो वीडियोस होती है ना, या कुछ फूड स्ट्रीट की जो वीडियोस होती हैं, तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा क्राउड या रश हो तो आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती है। हम फिर भी मतलब मैं कुछ सेंटेंसेस से, कुछ चीज़ों से पता लगाने की कोशिश कर रही थी, समझ रही थी, लेकिन अक्सर आज मैंने सोचा मुनासिब समझा कि बताऊँ आप लोगों को कि अक्सर इस तरीके की वीडियोज़ होती हैं जहाँ रश हो, आसपास गहमा गहमी हो, लोगों का बहुत ज़्यादा हुजूम हो, बहुत ज़्यादा क्लस्टर हो, तो फिर ना उसकी वीडियो के अंदर मैंने देखा है, चाहे वो जितना भी तेज़ बोलें लेकिन रिकॉर्ड नहीं होती आवाज़ सही से शोर शराबा ज़्यादा आ रहा होता है, तो जो वो बोल रहे होते हैं वो हमें ज़्यादा सही समझ भी नहीं आता है। अक्सर वीडियो में ऐसा होता है जहाँ पे रश हो। और अच्छा ऐसा होता है ना, वो वीडियोस हमें अच्छे से समझ में आती है जिसके अंदर रेसिपी दिखा रहे होते हैं, बन रही होती हैं, तो वो बस उनका फोकस होता है उस दुकान वाले पे या उस बंदे पे, तो वो वीडियोज़ में फिर भी आवाज़ सही होती है। अच्छा, एक चीज़ है कि हमने उन्हें खाते हुए देखा, हम मतलब आइसक्रीम सैंडविच नहीं सुना था मैंने, तो नाम भी नहीं सुना था पहले कभी। कैसा होगा ये, कैसे होगा? और मतलब तस्वुर करें आपको पता है आइसक्रीम और सैंडविच और वो हाथ से पकड़ के खा रहे हैं। मुझे तो काफ़ी देर तक लगा वो स्पून से खाएंगे जैसे हम आइसक्रीम खाते, मतलब तो मुझे काफ़ी पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये खाएंगे कैसे, फिर मैंने कहा यार ये आइसक्रीम और सैंडविच करके होगी, आइसक्रीम ही मीठे के तौर पे होगा, अब ये स्पून से शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे हम खीर वगैरह खाते हैं, मुझे इस टाइप का कुछ लग रहा था। मतलब बड़ी हैरत की बात है अपने आप में। मतलब अब पता है क्या हमारे दिमाग में ये है कि ये इसके जायकों को लेके अब हमें टेंशन है। अब इस जायके को लेके ना, चॉकलेट सैंडविच, ठीक है ना, डोसा, अच्छा वो जो कोकोनट चटनी का इतना हमने सुन लिया, आपके व्लॉग्स में इतना सुन लिया, पता नहीं कैसे बनती होगी। अच्छा, इसको तो कोकोनट चटनी को तो हम रेसिपी देखकर बना भी सकते हैं कि यार है ना कि इसमें क्या डिफरेंट है। अच्छा, बहुत सारे मैं आपको कह रही हूँ ना, वीडियोस देखती रहती हूँ, बहुत सारे लोग तो चटनीज वगैरह भी बता रहे होते हैं, डोसा के साथ की वाली चटनी, वो वाली चटनी, छोलों का सालन इनका बड़ा मशहूर है, छोले भटूरे। तो छोले भटूरे, जब भी कोई भटूरे बता रहा होता है तो उसके साथ छोले का सालन लाजमी बताता है। अच्छा, इनका बड़ा यूनिक है, हम भी चने का सालन बनाते हैं अपने घरों में, अंडे चने बनाते हैं या चने का सालन बनाते हैं, तो हमारी रेसिपी कुछ डिफरेंट है। इनकी रेसिपी मैंने देखा, इनकी रेसिपी ही डिफरेंट है, यानी इनका बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, तभी शायद टेस्ट में भी फ़र्क होता है। अच्छा, वड़ा पाव के साथ वो जो मैं सैंडविच, आइसक्रीम सैंडविच के हवाले से बात कर रही थी कि मैं ये सोच रही थी कि आइसक्रीम और स्लाइस या ब्रेड, अच्छा हम ये सोचते हैं ब्रेड के हवाले से कि ब्रेड अगर थोड़ी सी भी गीली हो जाए तो बेकार, बकवास हो गई, अब वो खाने लायक तो बची नहीं। आप ये देखें कि आइसक्रीम, क्योंकि वो तो मेल्ट होती है, वो तो लिक्विड होती है, आइसक्रीम के साथ यानी कि ब्रेड के ऊपर आइसक्रीम का सेटअप कैसे लगाया होगा, कैसे किया होगा, किस तरीके से बनाया होगा, मुझे वो रेसिपी सोचने वाला इंसान, मतलब क्या बात है, कैसे इतनी कमाल की तरकीब आ कैसे गई कि कोई इंसान दो चीज़ों का तस्वुर एक साथ मिलाप सोचता ही नहीं है कि तो बर्बादी है, और उन्होंने उसी से नई चीज़ एक ईजाद कर दी, नई रेसिपी ईजाद कर दी, वो अपने आप में इतनी यूनिक। और अगर ये लोग टेस्ट कर रहे हैं और एक यूनिक है तो इसका मतलब ये वायरल है, एक अच्छा इसका मतलब ये इंडियंस जो है फूड के साथ एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं, खेलते हैं, इसका मतलब ये हुआ, खेलते हैं, जाहिर सी बात है। बाकी डोसा मतलब है, कराची में है चीज़ डोसा, हाँ मसाला डोसा है, चीज़ डोसा नहीं। बहुत मतलब देख के ऐसा लगता है कि पराठे की तरह और फिर कड़क टाइप का। सब्जियां हमारे अंदर आते हैं, हम खड़ी खड़ी सब्जियां खाते हैं ना, जैसे कि हम सेम बनाते हैं या हम सेम आलू वगैरह बनाते हैं, आलू पालक वगैरह बनाते हैं, तो सब खड़ा खड़ा दिखता है। अच्छा, वो थोड़ा लेट भी जाए तो हमारे घरों में ये समझा जाता है बेकार हो गया, ख़राब हो गया, ये खाना ख़राब कर दिया है, अनाड़ी बंदे ने बना दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये लोग जो है ये लोग जो है इस तरह बनाते हैं कि बिल्कुल एक मेल्ट हो जाती है चीज़ें आपस में, वो कुछ घोटाला हो जाता है, और उसको टेस्ट करते हैं। मैंने जब भी देखा ये पाव के साथ खा रहे होते हैं, तो वो जो सालन होता है ना जिसको वो टेस्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल महीन हो चुका होता है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है उसको भून के, उसको पका के उसके अंदर सब सारी सब्जियां मिक्सअप हो गई, एक जान हो गई, और उसका एक अपना टेस्ट आ रहा होता है।
तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त। बाकी इनका टेस्ट करने का एक अपना अंदाज था, सही। जिस तरीके इन्होंने चीज़ें टेस्ट अच्छा की। ये वीडियो भी अपने आप में यूनिक लगी, बिल्कुल थोड़ी सी आइडिया थोड़ा सा अलग थोड़ा सा डिफरेंट था। सही। बैठ के एक जगह पे। अच्छा शुरू मुझे लग रहा था कि मुख्तलिफ जगहों पे जा के टेस्ट करेंगे, फिर इन्होंने एक जगह पकड़ ली, फिर वहीं पर चीज़ें बैठ गए लोग और इनके लिए वहीं ला पे हाँ ऑर्डर करते ले, मतलब आसपास वाले सपोर्ट करते हैं कि यार मैं बोलूँगी बहुत पब्लिक थी, बहुत बिल्कुल, लोग थे। बहुत रश था। अच्छा और ये भी अपने आप में कमाल है कि दोपहर में मार्केट्स होती है। मानिक चौक, हाँ मानिक यानी चौक, मानिक दोपहर में चौक ऐसी ज्वेलरी जगह या, है, कपड़ों वगैरह की मार्केट है, और रात में ये फूड स्ट्रीट बन फूड जाती स्ट्रीट है। ज़्यादातर रात में ही हाँ, रौनक, रौनक लाइटिंग होती है। वाइटिंग ये वो, तो एक जगमगा बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक वीडियो थी अपने आप में। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।